پھانسی کے 45 سال بعد سب سے بڑا سول اعزاز سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ تقریب میں جیسے ہی ذوالفقار علی بھٹو کا نام گونجا تو ایوان صدر میں خاموشی چھا گئی۔ والد کا نام اور خدمات سن کر صنم بھٹو کے آنسو رک ہی نہیں پا رہے تھے۔ ایوارڈ وصول کرنے کے لیے صنم بھٹو کو پکارا گیا تو آصفہ بھٹو پپھو کو سہارا دے کر اسٹیج تک لائیں۔ صنم بھٹو نے اشکبار آنکھوں سے صدر مملکت سے والد ذوالفقار علی بھٹو کا ایوارڈ وصول کیا۔ نانا کو نشان پاکستان ملنے کے موقع پر بلاول بھٹو زرداری بھی موجود تھے۔ بلاول بھٹو نے کہا، پہلے منتخب وزیر اعظم کو شہادت کے بعد اعلیٰ ترین سول اعزاز ملنا اہم سنگ میل ہے۔ آئین کے خالق کے لیے نشان پاکستان کا اعزاز بھٹوازم نظریے کی ایک اور فتح ہے۔ قائد عوام نے عوام کو حقوق حاصل کرنے کی جدوجہد کا شعور دیا۔ وقت کے عامر نے فخر ایشیا کی آواز دبانے کی کوشش کی۔ ذوالفقار علی بھٹو آج بھی گھڑی خدا بخش سے راج کر رہے ہیں۔ 23 مارچ تجدید عہد وفا کا دن، ایوان صدر میں مسلح افواج کی پریڈ، چاق و چوبند دستوں کی سلامی۔ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی تقریب میں شرکت۔ صدر زرداری نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ آرمی، نیوی اور فضائیہ کے دستوں کا مارچ پاسٹ، قومی پرچم کو سلامی دی گئی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی آمد پر چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ نوجوان نسل میں مایوسی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں اس کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم پاکستان پریڈ سے خطاب، کہا پاکستان کو بہت سے جیو پولیٹیکل چیلنجوں کا سامنا ہے۔ 5th جنریشن وارفیئر ایک چیلنج میں تبدیل ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم پاکستان پر ملک کو فلاحی ریاست بنانے کا عزم، کہا دن رات محنت کر کے معاشی استحکام حاصل کر لیا۔ مسلح افواج دہشت گردی کے خلاف بہادری کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے قائد کے اصول پر عمل کر کے ترقی یافتہ عظیم فلاحی مملکت بنائیں گے۔ عسکری قیادت کا یوم پاکستان پر خصوصی پیغام، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اور سروسز چیف نے یوم پاکستان پر قوم کو مبارکباد دی اور اپنے پیغام میں کہا کہ 23 مارچ 1940 ہمارا قومی تاریخ کا اہم ترین فیصلہ کن موڑ ہے۔ اس روز آزاد وطن کے قیام کے لیے مشترکہ کوششوں کی راہ ہموار ہوئی۔ ایمان، امید کی رہنمائی اور استقامت پر مبنی یہ دن قوم کے عزم کی علامت ہے۔ قوم جمہوریت کے سائے میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت ثابت قدم ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر خارجیوں کی تیراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ فورسز کی بروقت کارروائی میں 16 خارجی ہلاک ہوئے۔ ISPR کے مطابق خارجیوں نے شمالی وزیرستان کے علاقے غلام خان قلعے میں تیراندازی کی کوشش کی تھی۔ پاکستان بار بار افغان عبوری حکومت سے مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے لیے کہتا آ رہا ہے۔ توقع ہے افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا تیراندازی ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ خلات میں قتل 4 مزدوروں کی میتیں آبائی علاقے صادق آباد پہنچا دی گئی۔ محمد امین، دلاور حسین، منور حسین اور ذیشان کی میتیں آبائی علاقے پہنچنے پر فضا سوگوار۔ بجلی سستی کرنے کے لیے جامع پیکج کی تیاری، اعلان جلد ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پاور ڈویژن کے اجلاس میں گفتگو، کہا عوام کو بجلی کی قیمتوں میں مزید ریلیف دے گی۔ شمسی توانائی کے حوالے سے حکومت کی پالیسی اور ترجیحات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ شہباز شریف نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری تیز تر کرنے کی ہدایت کر دی۔ نظر ثانی معاہدوں کے بعد 7 IPPs نے بجلی سستی کرنے کے لیے نیپرا سے رجوع کر لیا۔ نیپرا میں CPPA اور 7 IPPs کی درخواست پر سماعت کل ہوگی۔ پنجاب نہریں بنانا چاہتا ہے، ہم نے روکا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی دریائے سندھ پر نہریں نہیں بننے دے گی۔ عوام میں پھیلی بے چینی دور کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے احتجاج کی کال دی۔ بلاول بھٹو خود احتجاج کی قیادت کریں۔ وفاق سے 100 ارب روپے کراچی کو کیسے ملیں گے؟ گورنر سندھ نے فارمولا بتا دیا۔ کامران ٹیسوری نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے گفتگو میں بتایا، میئر کراچی نے 100 ارب روپے دینے کے لیے خط لکھا۔ وزیر اعلیٰ سے کہتا ہوں 50-50 کر لیتے ہیں، 50 آپ دیں، 50 کا میں بندوبست کرتا ہوں، جس پر مراد علی شاہ نے کہا کہ میئر اور گورنر صاحب میں نوک جھونک چلتی رہتی ہے۔
गवर्नर साहब, दिस इज नॉट फेयर। आपने ये नहीं कहा था कि ये होगा तो वो होगा। मेयर कराची का गवर्नर सन कामरान टेसोरी को जवाब, कहते हैं मसला तब हल होगा जब 100 अरब रुपए केएमसी के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। लॉलीपॉप नहीं, अकाउंट में पैसे चाहिए। और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को चौथा टी20 115 रन से हरा दिया। सीरीज में 3-1 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। 221 रन के ताकुब में पाकिस्तान टीम 105 रन पर आउट हुई। जैकब डफी ने 4 और जैक फोक्स ने 3 विकेटें उड़ाईं। सीरीज का 5वां और आखिरी टी20 बुध को वेलिंगटन में खेला जाएगा। दूसरी इनिंग्स में गेंद ज्यादा स्विंग हो रही थी, इसलिए हदफ का ताक़ुब नहीं कर सके। चौथे टी20 में शिकस्त पर कप्तान सलमान अली आगा की मंतक, कहा न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा खेला, कोशिश करेंगे अच्छा परफॉर्म करके आखिरी मैच जीतें। PSL 10 की ट्रॉफी कटास राज मंदिर और नमक की कान खियोड़ा पहुंच गई। दिलकश और दिल फरेब मनाजिर ने दिलू मीनारा की रोनुमाई को 4 चांद लगा दिए। दोनों तारीखी मकामात पर ट्रॉफी का फोटो शूट भी किया गया। यौम पाकिस्तान पर ऐवान सदर में आला तरीन सिविल एजाजात देने की तकरीब मुनक्किद हुई। मालियाती शोबे में खदमात पर सुल्तान अली अकबर आलाना को निशान खिदमत, एयर मार्शल रिटायर्ड राजा शाहिद हामिद मरहूम को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुसल्लह अफवाज के 764 अफसरान और जवानों को फौजी एजाजात से नवाज दिया। शहदा के लवाहिकीन ने सितारे बसालत और तमगा बसालत वसूल किए। शहीद पुलिस अफसरान और एहलकारों को हिलाल शुजात से नवाजा गया। दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान, नारों की गूंज, परेड के दौरान फौजी बूटों की धमक दुश्मन पर लर्जा तारी कर दे। वाघा बॉर्डर पर यौम पाकिस्तान की शानदार तकरीब। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जवानों का परेड का जबरदस्त मुजाहरा फजा तकबीर के नारों से गूंज उठी। मर्द व खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग सब जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार। शहरियों का जोशो जज्बा दीदनी। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों ने माहौल गर्मा दिया। यौम पाकिस्तान पर दुबई में बुर्ज खलीफा पर सब्ज हिलाली परचम का दिलकश मंजर। यौम पाकिस्तान पर मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। मसाजिद में मुल्की सलामती, इत्तेहाद और यकजहती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। यौम पाकिस्तान पर मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फजाइये के चाको चबंद दस्ते ने फराइज संभाल लिए। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में यौम पाकिस्तान पर बुरहान वानी चौक से घड़ीपन चौक तक रैली निकाली गई। गवादर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब। लीविस के चाको चबंद दस्तों ने कौमी परचम को सलामी। यौम पाकिस्तान पर आजाद कश्मीर के एंट्री पॉइंट कोहाला के मकाम पर पुरवकार तकरीब। साबिक वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर अतीक अहमद खान, पाक फौज कमांडर ने पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के परचम लहराए। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। तहरीक आज़ादी कश्मीर के हीरोज की याद में यादगारी दीवार का इफ्तिताह। सैयद अली गिलानी, सरदार इब्राहिम, सरदार अब्दुल कयूम खान की तस्वीर से यादगारी दीवार मुज़य्यन है। अवाम ने हाथों में हाथ डालकर यकजहती और मोहब्बत की अलामत इंसानी हाथों की जंजीर बनाई। शुमाली वजीरिस्तान में यौम पाकिस्तान जोशो खरोश और जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ मनाया गया। तलबा ने तकरीर, फन पारो, मिली नगमों से वतन अजीज से मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार किया। शहदा की कुर्बानियों को खुसूसी खराज अक़ीदत। अमन के क़याम के लिए अफ़वाज पाकिस्तान की खदमात को सराहा गया। मीरान शाह में फुटबॉल मैच खेला गया। GOC मीरान शाह मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार ने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। पाकिस्तान के सिफारत खानों में यौम पाकिस्तान की तकरीबात। रियाज और जद्दा काउंसिल खानों में परचम लहराए गए। सिफारती अफसरान और तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान की शिरकत। अबू धाबी में पाकिस्तानी सिफारत खाने में परचम कुशाई हुई। बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में भी परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन में हाई कमिश्नर जाहिद हफीज चौधरी ने कौमी परचम लहराया। तेहरान में पाकिस्तान हाउस में परचम लहराया गया। पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू, पाकिस्तानी कम्युनिटी, ईरानी शहरियों की शिरकत। टोक्यो और ब्रुनाई में भी कौमी परचम लहराए गए। गवर्नर सन कामरान टेसोरी और वजीर आला असद मुराद अली शाह के मज़ार अक़ायद पर हाजिरी, फूल रखे, फातह खानी की।
वजीर ममलिकत खेलदास कोहिस्तानी की भी मज़ार क़ायद पर हाजिरी। फूल रखे डीजी रेंजर्सन मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज की भी मज़ार क़ायद पर हाजिरी। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। कहा, तहरीक पाकिस्तान की तरह आज मुल्क को इत्तेहाद की जरूरत है। कौम को मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बानियाने पाकिस्तान की जिद्दोजहद और शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कहा, अहद करते हैं पंजाब को कायदे आज़म के विजन के मुताबिक बुलंदियों पर गामजन करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, 23 मार्च हमारी तारीख का ताबनाक बाब है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना था, मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए ज़ाती और सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर काम करना होगा। मुल्क को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन करने के लिए मुत्तहिद होना कौमी फरीज़ा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए रियासत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। दुश्मन अनासर के नापाक अज़ाइम खाक में मिला देंगे। यौम पाकिस्तान पर गवर्नर हाउस लाहौर में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। अदाकार हामिद रना, अदाकारा शीबा हसन और गुलकारा फरीहा परवेज के सदारती तमगा बराए हुस्नी कारकर्दगी से नवाजा। खैरपुर में कुत्तों के काटने से जख्मी 7 साला बच्चा दम तोड़ गया। जाँ बहक बच्चे के लवाहिकीन का एहतजाज। आवारा कुत्ते तल्फ करने का मुतालबा। डॉक्टर्स का कहना है 20 दिन में कुत्तों ने 100 से ज़ायद लोगों को काटा है। 70 से ज़ायद केसेस अस्पताल में रिपोर्ट हुए। मुनशियात और गैर कानूनी असलहा रखने का मुकदमा। अदालत ने मुलजिम कामरान कुरैशी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिम कामरान कुरैशी मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमागान का वालिद है। वारिस का इबरतनाक अंजाम। जंडोला फोर्ट पर हमले में हलाक खारजी नईम खान से वालिद, खानदान और गांव मुशरान का लाताल्लुकी का ऐलान। वालिद अहमद खान ने कहा, जो मुल्क और पाक फौज के खिलाफ हो वो रियासत का दुश्मन है, चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो। मुझे उसकी लाश चाहिए, ना ढांचा। खारजियों के लिए कोई इज्जत है ना जनाजा। मेरा बेटा जहन्नुम का ईंधन है। इलाके की तारीख में पहली बार किसी मरने वाले के लिए न फातिहा ख्वानी हुई, न ताज़ियत की गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपनी फौज को गजा को मिलियामेट करने का हुक्म दे दिया। सेहूनी फौज की गजा पर रात भर बमबारी। 23 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में इसराइली फजाई हमले में हमास के सियासी शोबे के रुकन और उनकी अहलिया शहीद हो गई। रफाह में इसराइली फौज के हिलाल अहमर की एम्बुलेंस पर बमबारी। तल अवीव में अवाम का नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। गजा जंग दोबारा शुरू करने और सिक्योरिटी चीफ को बरतरफ करने के खिलाफ एहतजाज। गजा से 7 फलस्तीनी तलबा तालीम मुकम्मल करने के लिए कराची पहुंच गए। फलस्तीनी तलबा का मजीद एक ग्रुप चंद रोज में कराची पहुंच जाएगा। ज़राए का कहना है कि तलबा मुख्तलिफ तालीमी इदारों में अपनी तालीम मुकम्मल करेंगे। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वेटिकन सिटी रवानगी से पहले रोम के जेमिली अस्पताल की खिड़की से नमूदार होकर दुआएं दी। इस मौके पर अकीदतमंदों की बड़ी तादाद मौजूद थी। 88 साल के पोप फ्रांसिस को डबल नमूनिया की तशखीस हुई थी, जिसकी वजह से वो 14 फरवरी से अस्पताल में दाखिल थे। वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड में शामिल 9 खिलाड़ी कीवीज के देश रवाना हो गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, नसीम शाह, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, तैयब ताहिर, फहीम अशरफ और वसीम जूनियर ने लाहौर एयरपोर्ट से उड़ान भर ली। पाक न्यूजीलैंड 3 मैच की वनडे सीरीज 29 मार्च से शुरू होगी। भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के मुसलसल 300 के तस्करे पर शुएब अख्तर का तंज। कहा, ओ भाई बस कर जाओ, 300 से बाहर आ जाओ। अगर चाहते हो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम आ जाए तो मुझे बता दो। मुल्तान में 300 रन बनाने वाले सहवाग ने वीडियो शेयर की, जिसमें से 10 से ज्यादा बार 300 अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। जनूबी अफ्रीका में एयर शो के दौरान हादसा। तैयारा करतब दिखाते दिखाते गिरकर तबाह हो गया। पायलट ने निकलने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सका और जान से गया।
عید کی خریداری مارکیٹوں میں زبردست گہما گہمی. کراچی کی خواتین کے خود سے اور کولہاپوری چپل میں دلچسپی. خود سے پہننے میں آرام دہ ہوتے ہیں. چمڑے کی بنی کولہاپوری کا بھی جواب نہیں. عید کا دن معطر کرنے کی تیاری. کراچی میں خوشبو کے شیدائی بوتل گلی کے چکر لگانے لگے. ملکی اور غیر ملکی پرفیوم اور عطر کی خریداری بڑھ گئی.